76 किलोमीटर दूर इम्फाल से हम हैं चूरा चांदपुर एरिया में और ये है चीफ मिनिस्टर की विजन। चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल एन बीरेन सिंह जी जो हैं उनकी विजन है कि जो संगाई फेस्टिवल है वो सारे स्टेट में फैले ताकि कई सेंटर्स में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है चूरा चांदपुर, खूबसूरत लेक पीछे, सुंदर पहाड़ और ये चूरा चांदपुर में कल्चरल फेस्टिवल होता हुआ इस टाइम पर। यहाँ पर आज मीजो ट्राइब्स हैं, कुकीज़ हैं और ये एक लिविंग कल्चर है। यहाँ पे आप देखें कितने बच्चे सब तैयार होकर खड़े हैं, वेटिंग फॉर द चांस टू गो ऑन। खूब सारा हंसी, खूब सारे खूबसूरत चेहरे मुस्कुराते हुए, फुल पार्टी इज ऑन ओवर हियर। हर एक सीट यहाँ पे भरी हुई है, तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है यहाँ पर। फेस्टिवल की खुशियां नाच गाने से दूर एक जगह है हिस्टोरिकल वैल्यू की, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट, और वो जगह है ये। तो मैंने सोचा वहां से अब निकल के आपको यहाँ लेके आए और इस जगह के बारे में और बताएं। यह है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA मार्टर्स मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, मोइरांग, मणिपुर, 45 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फाल। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 को पहली बारी INA का फ्लैग लहराया था। तो इस जगह को बहुत ही हिस्टोरिकल महत्व मिल जाता है और अंदर है एक ब्यूटीफुल म्यूजियम और बहुत चीजें। आइए आपको वो सब दिखाते हैं। आइए, आफ्टर यू, एज बिफोर ब्यूटी। एक तरीका है कि मैं आपको सारी कहानी बताऊं, लेकिन उससे भी अच्छा हमारे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे साथ है मृणाश्री मायरेबम जी, हु इज द क्यूरेटर ऑफ द INA म्यूजियम इन मोइरांग। हाउ आर यू मैम? I'm fine, thank you. तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे यहाँ पर सबसे पहली बारी INA ने ट्राइकलर लहराया यहाँ पर। तो इस कहानी के बारे में हमको बताइए प्लीज। हाउ डिड इट स्टार्ट, what happened, पूरी कहानी बताइए, and let our viewers hear the whole story because it's very exciting when you tell it. Okay, so this place is called the INA War Memorial Complex, which is run by the Department of Art and Culture. A brief about this place, the brief history about this place is that this place was on 14 April 1944, the first tricolor flag of the Azadin Force, means the tricolor with the springing tiger was first hoisted by Colonel Saukat Ali Malik of the Bahadur group of INA under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose on 14 April 1944. It was like this. On 13 April, actually Moirang was occupied by the British soldiers during the Second World War time. There was a big battle between the INA and the Japanese versus the British. Yes. The INA took the help of the Japanese. So the Japanese were supporting the INA, and they have there was a fierce battle between the Allied forces and the INA and the Japanese. Right. So after the fierce battle, so the Japanese and the INA had fought so bravely that the British soldiers had to retreat back to a place called Posangbam, which is in the Bishnupur district, some kilometers away from here. So British were then occupying the place called Trong Laubi, a few kilometers from this place again. So after the retreat of the British soldiers, the Allied forces, Moirang was liberated by the British from the British colonial rule. Right, and Moirang at that time was a kingdom. No, Moirang used to be a kingdom before. Okay. So this place is a very secret place called Kangla because the kings of Moirang used to be coronated here. Right. So the leaders of Moirang decided that they should choose a place which will have a very historical significance. So they brought Colonel Saukat Malik on 14 April at around 5 o'clock and hoisted the flag of the Azadin Force in the evening. And so somewhere around the local people, including the Japanese forces and the INA, around 50 people were gathered here. So they have told the gatherings, the local people, to support the INA soldiers along with the Japanese soldiers because they were going to make Moirang the headquarters. So Moirang was made the headquarters of the INA soldiers for 3 months. And right after the hoisting of the tricolor flag, the Azadin force led by the Colonel Saukat Ali Malik and with the leadership freedom fighters of Moirang, Mr. Sri Mairembam Koireng Singh, who also later joined politics and became the first chief minister, of Sri Mairembam Koireng Singh and Sri Hemam Nilamani Singh, who owns the headquarters
the INA, or the house, which is later on made the headquarter, Right. which is now preserved by the present government and made My it God, into what an amazing amount of history. Yeah. तो हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है यहाँ पर. अगर आप इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, अगर आप INA के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बिलोंग करना चाहते हैं उस छोटे से पार्ट ऑफ हिस्ट्री को, तो यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. my pleasure. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये है इमॉर्टल वर्ड्स नेताजी के. और नेताजी की यही बिलीफ कि हिंदुस्तान को बनाने के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए हम सबको इत्तेफाक यानी कि यूनिटी, इत्माद यानी कि बिलीफ और कुर्बानी यानी कि सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी ताकि ये देश की जो नींव है उसको मजबूत किया जाए और उसके ऊपर खड़ा हो एक विशाल, खूबसूरत, महत्वपूर्ण हिंदुस्तान, बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान. और ये ड्रीम जो उनका है, अगर आज भी सोसाइटी में और लोग इसको अपहोल्ड करें और लोग इसको अपनाएं तो हमारा देश और इम्प्रूव हो सकता है. इतने दृढ़ इरादे, इतनी मजबूत हिम्मत. ये देखिए, सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज शुरू हुई और ऊपर चल के मलेशिया के थ्रू, थाईलैंड के थ्रू, रंगून के थ्रू यहाँ पहुँची चिटागोंग, और दूसरी जगह इम्फाल के पास सुभाष ब्रिगेड कोहिमा के पास अटैक करने के लिए. लेकिन फिर जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए. उसके बाद 2382 माइल्स कवर करने के बाद, जापानीज सरेंडर के बाद, आर्मी ने 1100 माइल रिट्रीट किया बैक टू बैंकॉक. तो ये है दृढ़ निश्चय उनका, जो उनकी हिम्मत थी टू क्रॉस दिस काइंड ऑफ टेरेन इन दोज डेज ऑन फुट. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैप. ये एक कहानी बताता है उनके दृढ़ निश्चय की. और जब आप INA म्यूजियम में आएंगे मोइरांग में, इधर से आइए, तो आपको ऐसी बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी. ये हैं एक्सकवेशंस जो मणिपुर में की गई हैं सब जगह. और यहाँ पे देखिए, जैसे जापानीज़ हैंडबुक, जापानीज सोल्जर्स की, ये उनके पर्सनल इफेक्ट्स यहाँ पर थोड़े वेपन्स, अगेन पर्सनल इफेक्ट्स, लैंटर्न, लाइट्स, हुक्स वगैरह. आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेनेड्स मिल जाएंगे. बुलेट्स हैं किस्म किस्म की, हर किस्म की. अलग मोटर, टेल फिन है. अगेन बुलेट्स फॉर राइफल्स, मशीन गन्स, हेलमेट्स एलाइड फोर्सेस की. ये सब इतिहास का हिस्सा है जो यहाँ पर बेरिड थी कई देर से. बाहर निकाल के इनको रिस्टोर करके यहाँ पर रखा गया है. एल्बीट दे वो बेरिड फॉर सो मेनी ईयर्स, तो काफ़ी वेयर एंड टेयर इनके ऊपर हो चुका है. जापानीज राइफल, फील्ड गन्स. तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कितना भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ पर. एंड दिस इज अ प्लेस दैट यू मस्ट कम टू. दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. सनसेट का टाइम है. सामने है जापानीज वॉर मेमोरियल. इम्फाल में है ब्रिटिश वॉर सेमेट्री और इंडियन वॉर सेमेट्री. लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक बहुत ही खास जगह पे, यहाँ के इम्फाल पीस म्यूजियम. हम खड़े हैं माई बम लोटपाचिंग में, और जिस पहाड़ को आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है रेड हिल. तो ये ट्रेडिशनली माई बम लोटपाचिंग इसलिए बोला जाता था. यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलते थे लोग. जो लोग छुपना चाहते थे वो लोग इधर आके छुपते थे इन घरे जंगलों के इस हिल के ऊपर. पर 21 जून से लेकर 29 जून 1944, खासकर 22 जून को यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध हुआ जापानीज सोल्जर्स और एलाइड फोर्सेस के बीच में. और यहाँ पर कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी. उसकी वजह से जो वेटरन्स थे, लड़ाई खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जापानीज वेटरन्स वापस आए और जापानीज फंडिंग के साथ उन्होंने यहाँ पर बनाया ये इम्फाल पीस म्यूजियम टू सेंड आउट द मैसेज ऑफ पीस. जब आप पीस म्यूजियम के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा वॉर की डिपिक्शन कैसी हुई थी यहाँ पर. यहाँ पर दीवार पे सारी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट 1939 और 1945 के बीच में, जो भी रेलेवेंस रखती हैं इस कैंपेन में और इस घमासान युद्ध में. और लड़ाई की कहानी के बाद शुरू होती है कहानी पीस की और रीबिल्डिंग की. और ये म्यूजियम आपको लेके जाता है रीबिल्डिंग के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू, मणिपुर के ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर के थ्रू, सारी की सारी ट्राइब्स के जैसे कि ये क्लॉथ्स अब ऊपर रखे हुए यहाँ पर. और फाइनली आपको लेके आता है यहाँ पर, जहाँ पे है वाह लिखा था शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ से, जिसका मतलब होता है पीस. तो सबसे बड़ी कहानी और सबसे अच्छी कहानी यही है कि द बेस्ट वे टू विन अ वॉर इज टू नॉट फाइट इट.